हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पॉइंटर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था पॉइंटर्स एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि एक मेमोरी एड्रेस लेता है। पॉइंटर्स ना तो एक यूज़र डिफाइंड टाइप है और ना ही एक प्रिमिटिव टाइप है। ये एक स्पेशल टाइप सी प्लस प्लस में ऑलरेडी आपको मिलती है एंड ये एक मेमोरी एड्रेस लेती है। फिर उसके बाद हमने बात की थी दो ऑपरेटर के बारे में जो हमें पॉइंटर से डील करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। उनमें से एक था एड्रेस ऑपरेटर जिसे हम एम्परसेट से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा था हमारा डी रेफरेंस ऑपरेटर जिसे हम एस्ट्रिक या स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने इनकी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में पढ़ा था और फिर इसके बाद हमने स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी के बारे में डिस्कशन की थी। तो मैं इस सब से रिलेटेड चीज़ें गूगल कर रहा था एंड आई फाउंड दिस वीडियो एंड आई थिंक यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। तो आइए वो वीडियो देखते हैं। Hey, Binky, wake up. It's time for pointer fun. What's that? Learn about pointers? Oh, goody! Well, to get started, I guess we're going to need a couple pointers. Okay, this code allocates 2 pointers which can point to integers. Okay, well, I see the 2 pointers, but they don't seem to be pointing to anything. That's right. Initially, pointers don't point to anything. The things they point to are called pointees, and setting them up's a separate step. Oh, right. I knew that. The pointees are separate. So, how do you allocate a pointee? Okay, well, this code allocates a new integer pointee, and this part sets x to point to it. Hey, that looks better. So, make it do something. Okay, I'll dereference the pointer x to store the number 42 into its pointee. For this trick, I'll need my magic wand of dereferencing. Your magic wand of dereferencing? That's great. This is what the code looks like. I'll just set up the number and... Hey, look, there it goes. So doing a dereference on x follows the arrow to access its pointee, in this case to store 42 in there. Hey, try using it to store the number 13 through the other pointer, y. Okay, I'll just go over here to y and get the number 13 set up, and then take the wand of dereferencing and just... Whoa! Oh, hey, that didn't work. Say, Binky, I don't think dereferencing y is a good idea, because, setting up the pointee is a separate step, and I don't think we ever did it. Good point. Yeah, we allocated the pointer y, but we never set it to point to a pointee. Very observant. Hey, you're looking good there, Binky. Can you fix it so that y points to the same pointee as x? Sure, I'll use my magic wand of pointer assignment. Is that going to be a problem like before? No, this doesn't touch the pointees. It just changes one pointer to point to the same thing as another. Oh, I see. Now y points to the same place as x. So wait, now y is fixed. It has a pointee. So you can try the wand of dereferencing again to send the 13 over. Okay, here goes. Hey, look at that. Now dereferencing works on y. And because the pointers are sharing that one pointee, they both see the 13. Yeah, sharing, whatever. So, are we going to switch places now? Oh, look, we're out of time. But just remember the 3 pointer rules. Number 1, the basic structure is that you have a pointer, and it points over to a pointee. But the pointer and pointee are separate, and the common error is to set up a pointer, but to forget to give it a pointee. Number 2, pointer dereferencing starts at the pointer and follows its arrow over to access its pointee. As we all know, this only works if there is a pointee, which kind of gets back to rule number 1. Number 3, pointer assignment takes one pointer and changes it to point to the same pointee as another pointer. So after the assignment, the 2 pointers will point to the same pointee. Sometimes that's called sharing. And that's all there is to it, really. Bye-bye now. हाँ, सो ये जो वीडियो थी ये एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं निक परलांटे। ये उन्होंने वीडियो बनाई थी एंड वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में CS 101 एक क्लास है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, जिसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। आप चाहे तो वो क्लास ले सकते हैं। एक वेबसाइट है coursera.com, मैं लिख देता हूँ COURSERA.com एंड coursera.com पे आपको एक ही क्लास मिलेगी CS 101 एंड इट हैज़ नो प्री रिक्विजिट। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स फॉलो करने में थोड़ा
डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि मैं कुछ टर्म्स का ऐसा यूज़ कर रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो CS101 इज़ डेफिनेटली अ क्लास टू लुक एट coursera.com। तो ये क्लास निक पर्लांटे पढ़ाते हैं और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जिनका अभी आपने वीडियो देखा। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर पासिंग एंड रिटर्न वैल्यूज़। देखिए, जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखें तो ये आपका वन ऑफ द मेन क्वेश्चन होना चाहिए कि सर, इस लैंग्वेज में हम पैरामीटर्स को कैसे पास करते हैं फंक्शंस में, क्योंकि ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज बहुत डिफ़र करता है। एंड अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपको पैरामीटर पास करने के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, देन यू आर नॉट गोइंग टू गो रियली फार इन दैट लैंग्वेज। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले पैरामीटर्स पासिंग इन C++। तो आइए देखते हैं। तो इस स्लाइड पे हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट एंड एक मेन फंक्शन है जो कॉल कर रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन को, प्रिंट स्टूडेंट 1 को, जो मैंने यहाँ पे जिसका कोड लिखा है। तो देखिए इस वेट अ सेकेंड, इस स्लाइड में एक ऐसी चीज़ है जो आपको सरप्राइज़ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में हमने बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं की है। वो क्या है? देखिए, मैंने अभी यूज़ किया कि ये हमारे पास एक क्लास है, राइट? बट इट डजंट हैव द कीवर्ड क्लास, इंस्टेड इट हैज़ अ कीवर्ड स्ट्रक्ट। तो बताइए, इवन दो मैंने कहा कि ये क्लास है, आई यूज़ द वर्ड स्ट्रक्ट, तो ऐसा क्यों? ये क्यों एक एरर नहीं है? देखिए, मैं ये भी लिख सकता था कि क्लास स्टूडेंट एंड फिर मेरे पास ये सारा डेटा होता, बट फिर ये सारा डेटा मेरा बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता। मैंने आपको बताया था member functions and member variables in C++ class are by default private. So that is why we have something known as struct. We have a keyword in C++ known as struct, which is exactly like a class, but इसकी एक additional property है, एक थोड़ी different property है कि इसके member variables and member functions by default public होते हैं, private नहीं होते। हाँ, हालांकि आप इसमें ऐसा कर सकते थे, you could have used keyword private here to make all these members private, but अगर आप नहीं लिखते so by default ये public होते हैं। so इस स्लाइड में यही था, यही स्लाइड मैंने अगली वाली स्लाइड पे भी रेप्लिकेट की है, तो आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, सो देखिए, हमारे पास अगेन एक क्लास है या फिर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे मेंबर वेरिएबल्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, जिसके पास पहला वेरिएबल है नेम, दूसरा है एक इमेज, एक उसकी PNG इमेज, एंड तीसरा है कि क्या वो पहले प्रिंट हो चुका है या नहीं हुआ। सो आइए हम अपने मेन कोड को देखते हैं। ये हमारा मेन कोड है। पहली लाइन कहती है, पहली लाइन एक डिक्लेरेशन है स्टूडेंट टाइप की जिसका नाम है A। तो देखिए, ये स्टैक पे है, तो सिस्टम हमारा स्टैक पे अपने आप हमारे लिए एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर देगा। इट इज़ ऑन स्टैक, ओके, एंड फिर उसमें कुछ इनिशियलाइज करेगा। लेट्स से इनिशियलाइज क्या करेगा, मे बी उसका जो नाम है उसका नाम कुछ डाल देगा। लेट्स से उसका नाम इस केस में है अमित, उसका एक इमेज होगा। फिर क्या वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है? लेट्स से अभी तक वो प्रिंट नहीं हुआ, सो प्रिंटेड एक बूलियन है, तो मैं इधर फॉल्स डाल देता हूँ, ओके। एंड उससे अगली लाइन में वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन प्रिंट स्टूडेंट 1 एंड वी आर पासिंग our variable A by value. We are passing variable A in print student 1 function by value. तो आइए मैं बताता हूँ ये passing by value क्या है। देखिए, passing by value जब भी आप अपने फंक्शन सिग्नेचर में यहाँ पे
कुछ ऐसा देखें लाइक ना यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, इट हैज़ जस्ट पैरामीटर स्टूडेंट एस, जो कि इस टाइम 24 के अंदर हम पैरामीटर डालेंगे उससे रिप्रेजेंट करेगा, लाइक इन दिस केस ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसे कहते हैं पासिंग बाय वैल्यू। तो देखिए पासिंग बाय वैल्यू सी प्लस प्लस में कैसे काम करती है। जब आप पास बाय वैल्यू, देखिए जब आप अपनी वैल्यू को पास करते हैं पैरामीटर में, पास बाय वैल्यू करते हैं, तो हमारा क्या करता है सिस्टम, स्टैक पे ही एक मेमोरी एलोकेट कर देता है, हमारी एक मेमोरी एलोकेट कर देता है इस नाम से, वेट, इस नाम से एस, उसने एस नाम से हमारी एक मेमोरी एलोकेट कर दी स्टैक पे। एंड फिर क्या करता है, उसे मेंबर वाइज कॉपी करता है, लाइक इधर अमित था तो इधर भी स्टैक पे अमित होगा, फिर उसकी इमेज कॉपी करेगा, फिर उसका प्रिंटेड कॉपी करेगा, इन दिस केस फॉल्स कॉपी करेगा। फाइन। एंड तो आइए फंक्शन में क्या काम हो रहा है वो देखते हैं। पहली लाइन है हमारी, इफ एस इज नॉट प्रिंटेड, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है सी प्लस प्लस में। इफ एस इज नॉट प्रिंटेड, देखिए एस प्रिंटेड नहीं हुआ, एस प्रिंट नहीं हुआ हमारा अभी तक, जो ये है, तो ये क्या करेगा, कंसोल पे एस का नाम प्रिंट कर देगा, लाइक इन दिस केस एस का नाम क्या है, अमित। सो कंसोल पे ये अमित प्रिंट कर देगा एंड फिर ये असाइन कर देगा एस, ये जो हम अगली लाइन पे आएंगे ये कर देगा एस प्रिंटेड इक्वल्स ट्रू। सो इन दिस केस ये इधर फॉल्स को हटा के यहाँ पे ट्रू कर देगा, ओके। एंड फिर इन द एंड वो रिटर्न कर देगा एक वैल्यू बूलियन, जो कि हमारा ये जो ए डॉट प्रिंटेड है ये सेव कर लेगा। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ये पास बाय वैल्यू है क्या। पास बाय वैल्यू जब भी आप अपने मेन फंक्शन से किसी भी हेल्पर फंक्शन में या फिर किसी भी एक नॉर्मल फंक्शन में कोई वैल्यू डालते हैं विदाउट एनी स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल, सो इन सी प्लस प्लस दैट इज नोन एज पास बाय वैल्यू, एंड पास बाय वैल्यू इज मेड बाय डिफॉल्ट इन सी प्लस प्लस। एंड देखिए ये स्टैक पे एक पूरा मेमोरी कॉपी करता है, लाइक जो भी आप पास कर रहे हैं, लाइक इन दिस केस मेरी एक यूज़र डिफाइंड टाइप है स्टूडेंट और मैं स्टूडेंट को पास कर रहा हूँ, तो वो उससे मेंबर वाइज कॉपी करता है। लाइक जो मेरा नाम था अमित, वो उस अमित को कॉपी किया उसने पहले, फिर उसका एक PNG इमेज था वो कॉपी किया, फिर वो पहले प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ वो कॉपी किया, ओके। सो इसे हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। देखिए इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दैट इट इज वेरी 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 स्लो, वेरी 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 स्लो। आप पूछेंगे वाई, ये स्लो क्यों है, लाइक आई हैवंट गिवन यू द रीज़न येट कि अगर ये स्लो है तो क्यों है, तो आइए मैं बताता हूँ। देखिए जब आप ये कॉपी कर रहे होते हैं तो ये अभी छोटा डेटा था हमारा, बट सपोज इसके पास लाइक 1000 वेरिएबल्स होते, लाइक 1000 मेंबर वेरिएबल्स होते, तो इससे पूरा का पूरा जो हमारा स्टूडेंट यूज़र डिफाइंड टाइप था उससे पूरा का पूरा स्टैक पे एक एलोकेट करना पड़ता, लाइक उससे नाम कॉपी करना होता, PNG कॉपी करनी होती है, एंड यू नो कि PNG बहुत हाई क्वालिटी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले सकती है, सो कॉपिंग PNG इज़ एक्सपेंसिव ऑपरेशन। फिर वो बूलियन कॉपी करता, फिर लेट्स से उसका घर का एड्रेस कॉपी करता, फिर उसका फ़ोन नंबर कॉपी करता। सो in big data, copying a big data over is a very 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 expensive operation, and pass by value allocates a new memory on the stack जो कि एकदम सेम होती है जो भी हम पास करते हैं। तो it is a very 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 slow
थिंग टू डू। तो अच्छी बात ये है सी प्लस प्लस में कुछ और वेज भी होते हैं पैरामीटर्स को पास करने के लिए। तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए दूसरा है हमारा पासिंग अ पॉइंटर बाय वैल्यू। पासिंग अ पॉइंटर बाय वैल्यू, आइए मैं बताता हूँ इसे हम कैसे पास करेंगे एक पॉइंटर को बाय वैल्यू के अकॉर्डिंग। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू insert a star sign here. We just have to insert a start sign here and now we are passing a pointer by value. तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मेन कोड देखते हैं। मेन कोड में पहले हमारी लाइन है स्टूडेंट पॉइंटर बी। देखिए अब ये स्टूडेंट पॉइंटर है और स्टूडेंट पॉइंटर एक मेमोरी एड्रेस लेता है और लेट्स से ये हमारा स्टूडेंट पॉइंटर बी है। एंड फिर हमारी इसकी कोई इनिशियलाइजेशन है, लेट्स से इसके बाद कुछ ऐसी लाइन है बी इक्वल न्यू स्टूडेंट, ऐसी कोई लाइन है जिसने हमारे सिस्टम ने हीप पे, देखिए हीप पे कुछ मेमोरी एलोकेट कर दी और इसने उसके अंदर नाम डाल दिया। लाइक 3 मेंबर थे हमारे, एक नाम था एक इमेज थी और क्या वो पहले प्रिंट हो चुका है या नहीं वो हो चुका। तो देखिए पहला नाम लेट्स से इसका नाम है बॉब। बॉब इसका नाम है, एक उसकी पीएनजी इमेज होगी एंड फिर वो पहले प्रिंट हो चुका है या नहीं हुआ। लेट्स से वो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ और ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ओके वी आर डन विद दिस लाइन एंड देन वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन print student2 डॉट बी। और देखिए हम b को नॉर्मली पास कर रहे हैं और b हमारा क्या था, स्टूडेंट पॉइंटर। इन दिस केस स्टूडेंट पॉइंटर था और देखिए अब मेरी टाइप भी मैच कर रही है स्टूडेंट पॉइंटर से। तो आइए देखते हैं। तो इस कोड में पहली लाइन है हमारी इफ़ s इज़ नॉट प्रिंटेड इन द पास्ट। बट इसे हम एक्सेस कैसे करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। हम पॉइंटर्स का डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, राइट, यूजिंग इन डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो मुझे यहाँ पे डी रेफरेंस ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। सॉरी अबाउट दैट, यूजिंग अ डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये मैंने एस्ट्रिक बनाया using a dereference operator. So if s is not printed, see out s का नाम। अगेन हम s का डेटा, s एक पॉइंटर है, हम उसका नाम एक्सेस करना चाहते हैं जो कि उसके डेटा के अंदर है। तो हमें अगेन वी हैव टू यूज एस्ट्रिक। वेट अ सेकेंड, या सो वी हैव टू यूज एस्ट्रिक। एस्ट्रिक हमारा कौन सा ऑपरेटर था, डी रेफरेंस ऑपरेटर एस डॉट नेम। एंड सो इन दिस केस इट विल प्रिंट बॉब। इन दिस केस इट विल प्रिंट बॉब। देखिए मैं इस कोड में मेरे पास कुछ ऐसी भी लाइन हो सकती थी, लेट्स से मेरे पास कुछ ऐसी लाइन हो सकती थी asterisk s dot printed equal true। मेरे पास कुछ ऐसी लाइन हो सकती थी। तो इस केस में क्या करता, इस केस में वो कोड हमारे लिए जहाँ भी s पॉइंट कर रहा है, जहाँ भी s पॉइंट कर रहा है, और s अभी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे b पॉइंट कर रहा था, क्योंकि मैंने पास बाय मैंने एक पॉइंटर पास किया तो s उसकी तरफ पॉइंट कर रहा था। तो जहाँ भी s पॉइंट कर रहा है, जहाँ भी s पॉइंट कर रहा है उसका प्रिंटेड ये था, उससे क्या करेगा, ट्रू कर देगा। ये फॉल्स हटा के यहाँ से ट्रू कर देगा। तो ये हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया। एंड जब हम इस फंक्शन से बाहर आएंगे, जब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये है हमारा बी डॉट प्रिंटेड। जहाँ भी बी पॉइंट कर रहा है उसका जो प्रिंटेड है आप वो प्रिंट करते हैं। देखिए जहाँ बी पॉइंट कर रहा है, सो जहाँ भी वो बी पॉइंट करेगा वी हैव टू यूज़ डी रेफरेंस ऑपरेटर।
तो देखिए मैंने डी रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ पे किया एंड नाउ इट शुड आउटपुट ट्रू। सो आपने देखा, दो मैंने चेंज अपने फंक्शन में किया, मेरा रिजल्ट मेन में आ गया। अगर हम अपने पिछले एग्जाम्पल को देखते हैं, पिछले एग्जाम्पल में जो भी हम चेंजेस कर रहे थे यहाँ पे, देखिए वो एक नई जो उसने नई कॉपी बनाई उसमें चेंजेस कर रहा था। इट वॉज नॉट मेकिंग एनी चेंजेस इन द ओरिजिनल कॉपी, इट वॉज मेकिंग चेंजेस इन द कॉपी द फंक्शन मेड फॉर इटसेल्फ। तभी जब हम पास बाय वैल्यू करते हैं, वो पूरा का पूरा जो हमारा डेटा है उसे कॉपी करता है और उस डेटा में चेंजेस करता है, वो ओरिजिनल डेटा में चेंजेस नहीं करता। बट कुछ सिचुएशंस देखो कोडिंग में ऐसी आएंगी जब आप जब आप चाहते हैं कि आपका हेल्पर फंक्शन ओरिजिनल डेटा में चेंजेस करे, सो उस केस में पास बाय वैल्यू सक्सेसफुल नहीं है। तो हाउएवर जो पास बाय पॉइंटर है, जब हम पॉइंटर व्हेन वी पास अ पॉइंटर बाय वैल्यू, वो एक नई कॉपी नहीं बनाता, वो एक नई कॉपी नहीं बनाता और जो भी वो चेंजेस करता है वो ओरिजिनल डेटा में करता है। तो देखिए इसका एक एडवांटेज है, इसका एडवांटेज है ओवर पास बाय वैल्यू से। क्या क्या एडवांटेज है मैंने अभी आपको बताया, इट इज फास्टर। इट इज़ फास्टर वाई? बिकॉज इट डजेंट इन्वॉल्व एनी कॉपिंग, इसे बार बार कोई डेटा कॉपी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आप कहेंगे कि ये तो बहुत फास्ट है एंड ये वो काम भी कर रहा है जो हम चाहते हैं। देखिए मैं बताता हूँ इसकी डिसएडवांटेज क्या है। पहली बात देखिए, हमें बार बार डी रेफरेंस ऑपरेटर का ख्याल रखना पड़ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सो डी रेफरेंस ऑपरेटर का बार बार ख्याल रखना देखो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है व्हेन यू हैव अ कोड ऑफ लाइक 500 लाइंस, 1000 लाइंस, 10,000 लाइंस। सो बार बार ये डी रेफरेंस ऑपरेटर का ख्याल रखना, ये एस्ट्रिक या स्टार का ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ वाई passing a pointer by value is not like widely used in the real world programming। तो आइए मैं आपको बताता हूँ रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में हम क्या यूज करते हैं। रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में वी हैव समथिंग लाइक पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस, देखिए पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप कोई पॉइंटर नहीं पास कर रहे, आप वैल्यू नहीं पास कर रहे, जहाँ पे आप ने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया था वहाँ उसका मेमोरी एड्रेस पास कर रहे हैं। सो आइए बात करते हैं क्या था, देखते हैं हम अपने मेन फंक्शन को देखते हैं। मेन फंक्शन में हम स्टैक पे एक स्टूडेंट बना रहे हैं सी। देखिए ये पॉइंटर नहीं है, नॉर्मल स्टूडेंट है। तो हमारा सिस्टम गया, उसने स्टैक पे सी के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट कर दी। लेट्स से सी से नाम है चिराग, CHIRAG चिराग, उसका एक PNG है और लेट्स से वो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है, राइट? उसने इनिशियलाइज कर दिया एंड उससे अगली लाइन है, ये फंक्शन कॉल कर रहा है नॉर्मली प्रिंट स्टूडेंट 3 और प्रिंट स्टूडेंट 3 हमारा ये है, प्रिंट स्टूडेंट 3 हमारा ये है। तो आइए बात करते हैं पास बाय रेफरेंस कैसे करें। पास बाय रेफरेंस के लिए आपको अपने पैरामीटर में एम्परसेंड का साइन लगाना होगा, क्योंकि एम्परसेंड का साइन हमें क्या दे देता है? यस राइट, उसका मेमोरी एड्रेस दे देता है एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल पास बाय रेफरेंस। सो क्या होता है, जहाँ पे सी था उस सी जगह को हमें एस भी रिप्रेजेंट करने लग जाता है। ये बस एक टाइप, आप इसे ऐसा सोच सकते हैं कि जहाँ भी जो मेमोरी एलोकेशन सी के नाम से थी अब वो एस के नाम से भी है। उस सी का राइट अभी गया नहीं है बट अब उसके दो ओनर्स हैं, एस एंड सी। सो आइए देखते हैं, इफ एस इज नॉट प्रिंटेड, इफ एस इज नॉट प्रिंटेड, देखिए अभी वो प्रिंट नहीं हुआ है। सो विल गो इनटू द नेक्स्ट लाइन, सी आउट एस का नेम, प्रिंट करते हैं एस का नाम। सो ये प्रिंट कर देगा चिराग। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एस्ट्रिक का यूज क्यों नहीं किया। देखिए एस्ट्रिक का यूज मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट पासिंग पॉइंटर्स बाय वैल्यू, आई एम जस्ट
जहाँ भी मेरा सी था मैंने उसे एस से रिप्रेजेंट कर दिया, उसका बस मैंने एक और नाम रख दिया। कोई मेरा हीप पे अभी कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है, मेरे पास कोई भी पॉइंटर्स नहीं है, सो दैट इज़ वाई आई डोंट हैव टू यूज़ एस्ट्रिक। तो इरेज कर देते हैं। सो देखिए मेरे पास कुछ ऐसी लाइन हो सकती थी अब इस कोड में, वेट अ सेकेंड, अभी कुछ इरेज कर देता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी लाइन हो सकती थी अपने कोड में, एस डॉट प्रिंटेड इक्वल्स ट्रू, एस डॉट प्रिंटेड इक्वल्स ट्रू। तो देखिए वो क्या मेन कॉपी में, मेन डेटा में, ओरिजिनल डेटा में क्या चेंज करेगा? यस, बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखिए एस इसका ही दूसरा नाम है, वो इधर जाएगा और ट्रू कर देगा। और फिर अब ये हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया, तो हम अगली लाइन पे आएंगे। अगली लाइन पे जब हम प्रिंट करेंगे सी डॉट प्रिंटेड को, तो हमारा प्रिंट होगा ट्रू। सो देखिए पास बाय रेफरेंस कैन एक्चुअली मेक चेंजेस टू द ओरिजिनल डेटा, एंड व्हाई इट इज़ वाइडली यूज्ड इन रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। देखिए क्योंकि हम वी डोंट हैव टू वरी अबाउट asterisks, we don't have to worry about speed, because no data is being copied over, दोबारा कोई भी डेटा कॉपी नहीं हो रहा है स्टैक पे या हीप पे कहीं भी, so it is faster as well. But why is it better than passing pointers by value? Because we don't have to worry about asterisk. देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो कि पास बाय पॉइंटर्स बाय वैल्यू, पासिंग पॉइंटर्स बाय वैल्यू के उस केस में ध्यान रखनी होती है, वो थी हमारी। देखिए अगर मैं पासिंग अ पॉइंटर बाय वैल्यू के बारे में बात करूं, तो सपोज मैं इस लाइन पे आया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं इस लाइन पे आया, इस लाइन के बाद मेरे पास कुछ ऐसी लाइन जो मैंने ये लिखी थी, सपोज ये नहीं है। अगर ये नहीं है और फिर भी मैं ये पास कर देता हूं, तो वो क्या करेगा, जब वो इस लाइन पे पहुंचेगा तो वो उस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करेगा जो कि हमने अभी एलोकेट की ही नहीं है। जो हमने मेमोरी अभी एलोकेट की नहीं है, वी विल रन इनटू अ रन टाइम एरर, वी विल रन इनटू अ रन टाइम एरर। तो आइए हम जो भी हमने पढ़ा अभी तक, पास बाय वैल्यू, पास बाय पॉइंटर बाय वैल्यू, पासिंग अ पॉइंटर बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस के इन तीन पैरामीटर पासिंग स्टाइल के बारे में जो हमने पढ़ा, आइए उसे कंसाइज करें। ये है हमारा पास बाय वैल्यू का कोड, ये है हमारा पास बाय पॉइंटर का कोड, और ये है हमारा पास बाय रेफरेंस का कोड। तो आइए कंसाइज करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले बात करते हैं पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू में मैंने आपको बताया कि जो भी आप पास करते हैं, जो भी आप डेटा पास करते हैं, उसकी एक नई कॉपी बनती है। अ कॉपी इज मेड एंड विच इज़ वेरी स्लो बोथ इन टर्म्स ऑफ which is very inefficient both in terms of time and space. So it is very slow, and it does not make any changes to the original data. It does not make any changes to original data. So it does not make any changes to the original data. So इसका एडवांटेज देखिए, इसका एडवांटेज तो एग्जैक्टली मैं नहीं मेंशन कर सकता, बट देखिए कुछ केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आप अपने ओरिजिनल डेटा को नहीं छेड़ना चाहते, आप उसकी एक नई कॉपी बनाना चाहते हैं एंड उस पर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं, देन उन केसेस में पास बाय वैल्यू इज द वे टू गो। तो आइए बात करते हैं पासिंग पॉइंटर्स बाय वैल्यू। पासिंग पॉइंटर्स बाय वैल्यू में देखिए हमारे पास जो फंक्शन होता है उसके अंदर एक एस्ट्रिक होता है, एंड जब भी हम कॉल करते हैं अ कॉपी इज नॉट मेड,
Instead, a pointer s or whatever you can call it, whatever name you want to give it to. So जो भी आपका pointer है, it starts pointing to the original data. It starts pointing to the original data, but इसका एक disadvantage है that you have to keep check कि जहाँ भी वो पॉइंट कर रहा है आपको नल चेक्स लगाने पड़ते हैं इस कोड में, एंड एस्ट्रिक बहुत ही बड़ी पेन इन द नेक होती है इस केस में. सो दैट इज़ वाई वी डोंट यूजुअली पास पैरामीटर्स यूजिंग पास बाय पॉइंटर्स. सो या इसके साथ यही इश्यूज थे. देखिए इस कोड में आप देख रहे होंगे, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ. इस कोड में आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे कुछ एरोस हैं, बट मैंने ओरिजिनल कोड में जब बात की थी तो ये एरोज नहीं थे. तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इवन दो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. देखिए मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है एस्ट्रिक एस डॉट नेम, मेरे पास कुछ एक ऐसी चीज़ है एस्ट्रिक एस डॉट नेम, तो ये क्या करेगा, जहाँ भी एस पॉइंट कर रहा है डी रेफरेंस ऑपरेटर इसे ऐसे पार्स करेगा, जहाँ भी एस पॉइंट कर रहा है वहाँ पे जो भी नेम नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू रिट्रीव कर लेगा, राइट. एंड सेम थिंग कैन बी डन यूजिंग एस एरो नेम. सो ये दोनों चीज़ें, ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की एनालॉगस हैं. रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में लोग ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, एरो यूज़ करते हैं, बिकॉज इसे विजुलाइज करने में आसानी रहती है, बिकॉज ये एक पॉइंटर सा है. देखिए इसे विजुलाइज करने में आसानी रहती है एंड या इसलिए यूज़ करते हैं बस. तो हमने अभी तक डिस्कस किया पास बाय वैल्यू जो एक नया कॉपी बनाता है बट स्लो होता है, और पास बाय पॉइंटर्स जो नया कॉपी नहीं बनाता बट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. नया कॉपी नहीं बनाता इसीलिए बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बट इसके कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि हमें नल चेक्स रखने पड़ेंगे एंड बार बार एस्ट्रिक से डील करना पड़ेगा. इसीलिए हमारे पास बहुत ही वाइडली यूज्ड एक स्टाइल है पासिंग बाय रेफरेंस. तो आइए बात करते हैं पासिंग बाय रेफरेंस है था क्या. देखिए पासिंग बाय रेफरेंस में, देखिए पासिंग बाय रेफरेंस में हम एम्परसेंड जो ऑपरेटर था हमारा, जिसे हम एड्रेस ऑपरेटर कहते थे, वो यूज़ करते हैं बिकॉज वी पास द मेमोरी एड्रेस. तो जब मैंने सी एलोकेट किया स्टूडेंट सी, मैंने उसे इनिशियलाइज़ किया, सिस्टम ने मेरे लिए इनिशियलाइज़ कर दिया. मैंने उसमें कुछ वैल्यूज़ डाल दी उसके वेरिएबल्स में, नेम में डाल दी, मैंने एक पिक्चर डाल दी, मैंने प्रिंटेड क्या वो पास में प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ, ये सब वैल्यू दे दी. एंड देन आई पास्ड इट टू अपना जो हमारा प्रोग्राम था प्रिंट स्टूडेंट 3 वहाँ, एंड वो लेता है एक मेमोरी एड्रेस. उसने सी का मेमोरी एड्रेस ले लिया, जहाँ भी वो पॉइंट कर रहा था सी, उसको एक दूसरा नाम भी दे दिया एस. और जो भी हम चेंजेस करेंगे एस पे वो रियल डेटा पे होंगे, वो ओरिजिनल डेटा पे होंगे, और सारी चेंजेस जो हम फंक्शन में करेंगे, इस फंक्शन में करेंगे, वो ओरिजिनल डेटा में सारा रिफ्लेक्ट होगा. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पास बाय रेफरेंस, एंड पास बाय रेफरेंस इज रियली फास्ट. It is as fast as pass by pointers, because even in this case no copy is made. कोई भी कॉपी नहीं बनती है. जो भी आप डेटा एलोकेट करते हैं, जो भी आप डेटा में चेंजेस करते हैं अपने फंक्शन में, वो ओरिजिनल डेटा में चेंजेस होते हैं. एंड इसमें हमें नल चेक्स नहीं करने होते, या बहुत बड़ी बात, हमें इसमें नल चेक्स नहीं करने होते, एंड और क्या नहीं करना होता, और हमें बार बार उस एस्ट्रिक का भी ध्यान नहीं रखना होता. सो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज. सो देखिए हमने पैरामीटर पासिंग के बारे में पढ़ा, जो कि C++ में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के पैरामीटर पासिंग स्टाइल होते हैं. पहला होता है पासिंग बाय वैल्यू, विच इज़ C++ का डिफ़ॉल्ट टाइप. हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये बहुत
इनएफिशिएंट होता है बिकॉज ये पूरा का पूरा डेटा कॉपी करता है, और जो भी ये डेटा कॉपी करता है वो उस डेटा में चेंजेस करता है, वो ओरिजिनल डेटा में नहीं कर सकता। दूसरा हमने डिस्कस किया था पासिंग बाय पॉइंटर्स। हमने पासिंग बाय पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था कि ये बहुत फास्ट होता है बिकॉज नो कॉपी इज मेड। सिंस नो कॉपी इज मेड, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि सिंस नो कॉपी इज मेड दैट इज़ वाई ये बहुत फास्ट होता है। एंड हमने पढ़ा था इसके बारे में कि हमें इसमें नल चेक्स रखने होते हैं। सपोज हमने एक स्टूडेंट पॉइंटर बी डिक्लेयर किया और हमने उसको मेमोरी एलोकेट नहीं की, बट स्टिल हमने बी पास कर दिया उस एक हेल्पर फंक्शन में यूजिंग पासिंग बाय पॉइंटर्स। सो उस केस में हमें नल चेक्स लगाने होंगे, अदरवाइज वी विल रन इनटू रन टाइम एरर्स। तो दैट इज़ वाई वी डोंट यूज़ we don't usually pass parameters by pointers। और तीसरा टाइप हमने डिस्कस किया था पासिंग बाय रेफरेंस। पासिंग बाय रेफरेंस में मैंने आपको बताया कि हम पूरा का पूरा उसका जो मेमोरी लोकेशन एड्रेस होता है, हम उसे मेमोरी एड्रेस पास कर देते हैं, और वो एक टाइप से एक ही सेम लोकेशन का एक दूसरा नाम हो जाता है। और जो इसमें सिंस नो कॉपी इज मेड इवन इन दिस केस, सो इट इज़ फास्ट। एंड इसमें हमें एस्ट्रिक का भी बार बार ध्यान नहीं रखना होता। एंड द बेस्ट पार्ट, इसमें हमें नल चेक्स भी नहीं डालने होते। तो सो नाउ वी आर डन विद पैरामीटर्स पासिंग। सो नाउ लेट्स शिफ्ट टू रिटर्न वैल्यूज। तो आइए बात करें रिटर्न वैल्यूज़ की। देखिए सी प्लस प्लस में एक फंक्शन तीन टाइप से वैल्यूज़ रिटर्न कर सकता है। तो आइए बात करते हैं वो तीन टाइप्स हैं क्या। वो है रिटर्न बाय वैल्यू, रिटर्न बाय वेट अ सेकेंड, रिटर्न बाय वैल्यू, और रिटर्न बाय पॉइंटर बाय वैल्यू, पॉइंटर बाय वैल्यू, और रिटर्न बाय रेफरेंस। तो आइए बात करते हैं ये तीनों टाइप हैं क्या। ये तीनों टाइप हैं क्या। तो आइए पहले बात करते हैं रिटर्न बाय वैल्यू की। तो मैं चाहता हूँ आप पहले ये कोड देखें। देखिए मेरे पास दोबारा एक स्ट्रक्ट है स्टूडेंट, जिसके पास एक नाम है, एक उसकी इमेज होगी, और क्या वो पास्ट में प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ। फिर मेरे पास एक मेन कोड है जिसमें मैं स्टैक पे एक स्टूडेंट बना रहा हूँ। मैं एक स्टैक पे स्टूडेंट के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहा है सिस्टम, एंड देन मैं उस ए को अपने फंक्शन में पास कर रहा हूँ पासिंग बाय वैल्यू, पासिंग बाय वैल्यू। सो देखिए इस केस में हमने लास्ट टाइम इसकी बात की थी इससे पहले कि सिस्टम इस ए का एक और कॉपी बनाएगा एस, एंड उसमें ये सब पहले डेटा कॉपी करेगा, एंड फिर उसमें जो भी चेंजेस करने चेंजेस करेगा, एंड देन इट विल रिटर्न। सो देखिए इस केस में वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। सो ट्रू एक बूलियन वैल्यू है इस केस में। देखिए ट्रू एक बूलियन वैल्यू है, तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप बूलियन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या इसका रिटर्न टाइप बूलियन है। यस, इसका रिटर्न टाइप बूलियन है। एंड हम अपने मेन फंक्शन में दोबारा जाते हैं, तो हम देखते हैं प्रिंट स्टूडेंट 1 को हम एक बूलियन बी से असाइन कर रहे हैं। तो देखिए इस असाइनमेंट ऑपरेटर पे टाइप मिसमैच नहीं हो रहा है, टाइप मिसमैच नहीं हो रहा है। सो इट इज़ नॉट अ कंपाइलर एरर, एंड येस इट इज़ कम्प्लीटली वैलिड। तो अगर हम इसके बाद अगर सी आउट बी करते हैं, it would be true. So this is what we call pass by value. So pass by value में कुछ स्पेशल नहीं है। So it is a very easy concept। या अगर आपने पास्ट में कोडिंग की है जावा में, सी में, so आप जानते होंगे कि ये कोई एक नई चीज़ नहीं है। और अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये जो मैंने आपको बताया दैट इज़ ऑल अबाउट पास बाय वैल्यू। सो आइए बात करते हैं दैट इज़ ऑल अबाउट रिटर्निंग बाय वैल्यू। आई एम सॉरी, दिस इज़ ऑल अबाउट रिटर्निंग बाय वैल्यू। सो आइए हम आगे बात करते हैं रिटर्निंग पॉइंटर बाय वैल्यू के बारे में।
बात करते हैं रिटर्निंग पॉइंटर मेथड। सो देखिए, अब दोबारा हम अपने कोड को पढ़ते हैं। हमारे पास एक दोबारा स्ट्रक्ट है। स्ट्रक्ट मैंने आपको बताया था इट इज़ जस्ट लाइक अ क्लास, बट एक स्पेशल टाइप की क्लास जिसमें सारे मेंबर्स पब्लिक होते हैं, नॉट प्राइवेट। सो हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सो आइए देखते हैं अपने मेन कोड को। मेन कोड में स्टैक पे हमने पहले एक सी बनाया, फिर हमने एक डी पॉइंटर बनाया स्टैक पे, फिर हमने सी को इनिशियलाइज किया। सो लेट्स से इसके पास एक नाम है, नाम वी कैन से एनीथिंग लाइक XYZ, एक उसका PNG है, और ये क्या पास्ट में प्रिंट हुआ है, लेट्स से अभी प्रिंट नहीं हुआ। सो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम सी को अपने एक फंक्शन में डाल रहे हैं, और वो फंक्शन ये रहा। देखिए ये फंक्शन नॉर्मली एक पास बाय वैल्यू के थ्रू हम पास कर रहे हैं। सो ये सिस्टम हमारा एक और बना देगा, ये सब एक मेमोरी नया एलोकेट कर देगा, किसके लिए, S के लिए, एंड S इज़ नथिंग, वो XYZ होगा। ये सारा डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, और एक इसका ऐसा ही PNG होगा और एक इधर फॉल्स होगा। तो ये सारा डेटा एग्जीक्यूट होगा, एंड देन इस कोड में एक ये स्पेशल लाइन है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये अननेसेसरी लाइन है। इसमें क्या कर रहा है, स्टैक में ही सिस्टम हमारा एक W बना रहा है और उसमें S का डेटा कॉपी ओवर कर रहा है। सो कोई बड़ी बात नहीं है, इट वुड बी XYZ, एक PNG होगा एंड एक फॉल्स होगा। सो इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। ये जब सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा। और ये देखिए, ये पॉइंट बहुत ही ध्यान रखने का है। इस केस में क्या रिटर्न कर रहा है, इस केस में वो W जो कि एक लोकल वेरिएबल है जो कि स्टैक पे एलोकेट हुआ है, ये रिटर्न कर रहा है उसका मेमोरी एड्रेस। देखिए हमारे पास इस टाइम एड्रेस ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो उसका मेमोरी एड्रेस रिटर्न कर रहा है, एंड इट इज़ रिटर्निंग यूजिंग अ पॉइंटर। इट इज़ रिटर्निंग बाय पॉइंटर। देखिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्टूडेंट पॉइंटर। सो यू टेल मी, इज इट अ गुड आइडिया? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जब ये रिटर्न कर लेगा, रिटर्न करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टैक में से जो भी उसने मेमोरी एलोकेट की थी वो सब डिलीट कर देगा। जो भी उसने इस फंक्शन को रन करने के लिए जो भी मेमोरी ली थी वो सारी क्लियर कर देगा। एंड अब रिटर्न ये एक ऐसी वैल्यू कर रहा है, एक ऐसी लोकेशन कर रहा है मेमोरी में जो कि अब इनवैलिड है। सो प्लीज़ मैं स्ट्रेस करके कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना, इट इज़ अ वेरी 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 बैड आइडिया टू रिटर्न मेमोरी एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल्स। अगर आपको कुछ ऐसा ही मतलब अपने फंक्शन में कुछ ऐसा करना था कि जिसे आप आगे पास कर सकें, आई वुड सजेस्ट कि आप वो हीप पे एलोकेट करें, स्टैक पे एलोकेट ना करें, बिकॉज वो फंक्शन ख़त्म होने के बाद सिस्टम वो सारी की सारी मेमोरी क्लीन कर देगा, और वो मेमोरी एक बार क्लीन होने के बाद वो जो हमारा लोकेशन है, मेमोरी एड्रेस है, वो इनवैलिड हो जाएगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन पासिंग अ मेमोरी लोकेशन ऑफ अ लोकल वेरिएबल। सो मैं लिख भी देता हूँ, डू नॉट एवर return memory address of local variable। So अब आप पूछ रहे होंगे हाउ कैन वी फिक्स दिस, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। हाउ कैन यू फिक्स दिस? ये हमारा एक थर्ड टाइप है, व्हाट वी कॉल रिटर्निंग बाय रेफरेंस। अब ये रिटर्निंग बाय रेफरेंस क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोबारा इस केस में हमारे पास एक स्ट्रक्ट है,
इसके बारे में डिस्कशन हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। फिर हम अपने मेन फंक्शन को देखते हैं। एक स्टैक पे हम एक स्टूडेंट बना रहे हैं, सी स्टैक पे हमने एक स्टूडेंट बनाया, इसका एक नेम है, इसकी एक पीएनजी इमेज है, और वो क्या पहले प्रिंट हो चुका है, नहीं हो चुका। फिर देखिए हमने इनिशियलाइज कर दिया सी को, एंड फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट स्टूडेंट 5 में हम सी को पास कर रहे हैं। हमने सी को इस फंक्शन में पास किया, उसने एस ने एक और कॉपी बना दी, हमारे सिस्टम ने एक और कॉपी बना दी एस, उसने सारा डेटा कॉपी किया, इसमें नेम आ गया, वो पीएनजी आ गया, और ये फॉल्स आ गया। एंड देन इस लाइन ने दोबारा इस डेटा को स्टैक पे ही सिस्टम ने हमें एक W नाम से डेटा एलोकेट कर दिया और कॉपी कर दिया। नेम एक इधर पीएनजी होगी और इधर फॉल्स होगा। फिर वो ये सारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, ये कोड हमें जाने की ज़रूरत नहीं है अभी क्या एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन इट इज़ रिटर्निंग W, और W इट इज़ रिटर्निंग बाय रेफरेंस। रिटर्निंग बाय रेफरेंस का देखिए मतलब ये है कि ये सिस्टम इस केस में ये जो W है हमारा यहाँ पे, इसका मेमोरी लोकेशन रिटर्न कर रहा है, बट देखिए जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होना ख़त्म कर देगा, जब ये रिटर्न कर देगा, सिस्टम अपने आप ये वाली मेमोरी और ये वाली मेमोरी क्लियर कर देगा। एंड जो हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी, जो मेमोरी एड्रेस अब इसके पास आएगा, जो डी के पास अब मेमोरी एड्रेस आएगा, दैट इज़ नॉट वैलिड एनी मोर। सो या इस केस में भी सिंस इट इज़ रिटर्निंग memory address of a local variable, we will run into some kind of issues. So definitely it is a bad idea. तो आप सोच रहे होंगे अगर रिटर्निंग बाय पॉइंटर्स एंड रिटर्निंग बाय रेफरेंस अगर दोनों में ही प्रॉब्लम है तो सही कौन सा है? देखिए सही दोनों ही हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं है दोनों में, बट प्रॉब्लम ये आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम क्या कोई चीज़ रिटर्न कर सकते हैं यूजिंग रेफरेंस? तो इसका आंसर है यस, कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, बट लेट मी फर्स्ट इरेज दिस। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये था कि क्या मैं लोकल वेरिएबल रिटर्न कर सकता हूँ बाय रेफरेंस? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर कंडीशन में जब मैं अपना पैरामीटर पास बाय रेफरेंस करूँ, तो आइए देखते हैं इस कोड में क्या चल रहा है। तो हम अपने सबसे पहले मेन को देखेंगे। मेन में ये लाइन C एंड D दो यूजर डिफाइंड वेरिएबल स्टैक पे एलोकेट कर रही है। ओके, सो लेट्स सी। ये C का एलोकेट कर लिया एंड ये D एलोकेट कर लिया। यप, दैट्स ऑल अबाउट इट। सेकेंड लाइन इनिशियलाइज कर रहा है C को, सो इट इज़ आवर कॉल, वी कैन name anything we want. Let's say name is name and एक उसका png image होगा। and क्या ये पहले प्रिंट हो चुका है? Let's say नहीं हुआ है प्रिंट। ओके, and then we इस लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, then we are passing C, we are passing it by reference. Since we are passing it by reference, सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम जो ये मेमोरी ब्लॉक है C के लिए, इसे एक और नाम दे देगा S, तो ये सब फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। इफ़ S इज़ प्रिंटेड, सिंस F इज़ नॉट प्रिंटेड, वो नेम प्रिंट कर देगा, ये वाली लाइन एक नेम प्रिंट कर देगी, एंड फिर S प्रिंटेड इक्वल्स ट्रू कर देगा। ये जो S का जो प्रिंटेड है, इसे फॉल्स हटा के
ट्रू कर देगा। सो यहाँ तक हमने कोड एग्जीक्यूट कर लिया, ये अपना प्रिंट स्टूडेंट 5, एंड देन इट विल रिटर्न s by reference, and then it will return s by reference, and you can see this return value is being holded by d. So क्या होगा, जो भी इसने रिटर्न किया s ने, उसने रिटर्न क्या किया, उसने इसका मेमोरी एड्रेस किया, तो ये मेमोरी एड्रेस कौन होल्ड कर लेगा, d. So d will represent the same memory location which is being represented by s and also being represented by c. So c, s, d, all three of them are pointing to the same location. So that is why in this case we can return by reference. So हमने अभी तक जो हमने डिस्कशन की, इससे हमें क्या लेसन मिला, that never ever return a local variable using a pointer or return a local variable by reference, even though you can return a local variable by reference if you pass your parameter by reference, otherwise not. Okay, so this concludes our discussion for return styles in C++. So next time हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में. Yes, हमने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पहले भी पढ़ा था, बट वो एक बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन था कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, ताकि हम यूज़र डिफाइंड टाइप्स को इंट्रोड्यूस कर सकें. बट अगली बार हम कंस्ट्रक्टर्स ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, एंड आपको अगले लेक्चर के बाद कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पूरा नॉलेज होगा. सो अभी के लिए बाय.